Yeah, so good morning. So this is Manish reporting from Goa this time, and first time in Goa, very nice vibes, very different vibes, I would say, and I'm enjoying it, I would say. ऐसा नहीं कि enjoy नहीं कर रहा हूँ, the music, the hippie music that is there going on 24/7 in the hotel and everywhere. It's a different lifestyle. So I believe that earlier I used to not enjoy these kind of places. I was like, मुझे शांत जगह ही चाहिए. But yoga has made me such now that that pratyahara that we talk about. So, जो pratyahara बोलते हैं ना, it is withdrawing your senses from the sense organs. You don't let anything outside of you affect you. Okay. So I'm in Goa right now. Maybe universe wanted me to visit here. अगर मैं यहाँ पे आके agitated बन जाता, that अरे यार इतना म्यूजिक क्यों है यार एवरीवेयर म्यूजिक डिनर के टाइम भी म्यूजिक ब्रेकफास्ट टाइम म्यूजिक आई कुड हैव क्रिप्ड आई कुड हैव कंप्लेन्ड आई कुड हैव लाइक अपने आप को ब्लेम करता मैंने गोवा क्यों चूज किया एक वेकेशन के लिए आई वांटेड पीस ऑफ माइंड कैसा जाता मेरा वेकेशन इट वुड हैव बीन लाइक ऑलवेज कंप्लेनिंग बट आई एंजॉयड इट हाँ म्यूजिक है चलो थोड़ा अपने भी रॉक करते म्यूजिक के साथ जस्ट लेट एंजॉय दिस इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ लाइफ कौन सा मुझे जिंदगी भर यहाँ पर रहना है हाँ ठीक है आई एम एंजॉयिंग दैट ऑल्सो मे बी आई एम गोइंग बीच साइड थोड़ा बीच साइड रिलैक्स कर लिया मे बी आई वेंट टू आई सेक्लूडेड माई सेल्फ कि हाँ थोड़ा मुझे माई टाइम चाहिए तो बिग लर्निंग फॉर एवरी वन दैट यू कैन नॉट चेंज द सर्कमस्टेंसेस अराउंड यू बट whom यू कैन चेंज किसको बदल सकते हैं अपने थॉट प्रोसेस को अपने आप को बदल सकते हैं ओके सिंस मेनी न्यू स्टूडेंट्स हैव जॉइंड दिस मंथ एंड दे वर आस्किंग मी अबाउट व्हाई डू वी डू दिस 3 डे रॉ चैलेंज ओके सो 3 डे रॉ चैलेंज का पहली बात तो ये मतलब नहीं है कि हम पूरा रॉ खावे ओके सो इफ यू वांट अ बेनिफिट ऑफ अ रॉ डाइट इवन 70 to 80% रॉ इज गुड इनफ ओके बलजीत जी चेयर पे बैठिए आप ऑन सिट ऑन अ चेयर प्लीज नॉट डाउन चेयर पे चेयर चेयर डोंट सिट डाउन Okay, so what we target at TIHA is 70 to 80% raw. Rest can be steamed, boiled, cooked. Anything is okay. Why do we do this? So there's a scientific reason behind it. There is something called as Ekadashi. अगर आपने सुना होगा. So don't worry, it's not a religious term. It's just the 11th day of the lunar cycle. Okay. So there are two lunar cycles in a year. One is the full moon, one is the new moon. And on the 11th day, there is some certain significance why we should do some form of restraint on the 11th day, especially related to food, but few other things also. आज हम खाने की बात करेंगे. We'll not talk about mind, the senses, and the sense organs. That is a different story altogether. But let's focus on food today. Why we should control our diet today, 11th day. What is the scientific significance हम समझेंगे. Okay. So सबको पता है waves आते हैं in the समुंदर जैसे मैं बीच साइड हूँ अभी. So there are waves that are happening. तो who controls the waves? Waves कौन control करता है? Anyone? Moon. Anjanati? Moon. Moon. Yes. So it is the lunar cycle that controls the waves, water. Okay. तो अगर वो समुंदर के पानी को कंट्रोल कर सकता है व्हाट आर वी मेड ऑफ 70% क्या हमारे बॉडी में 60-70% व्हाट इज देयर इन आवर बॉडी Water. water yes so if that moon can control those waves now so that moon also has an impact on our body also so हमारा बॉडी जो पानी का बना हुआ है उस पर काफी असर होता है so this 11th day, especially this has to do with the full moon and the new moon, जो अमावस्या and पूर्णिमा आती है. This is like a preparation for that. Because when the moon, जब full moon होता है या new moon होता है, it has a lot of impact on our digestive system. Okay. So now we better know the digestive system. It's not only your stomach, it's also how you chew, how you swallow, your stomach, your assimilation in the small intestine and excretion from the large intestine. Okay. So it affects everything. जब मून के साइकिल्स है ना हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर फॉर दिस इज लाइक अ 11th डे इज अ प्रिपरेशन फॉर व्हाट फॉर द अमावस्या एंड पूर्णिमा सो दैट हमारा माइंड आप नोटिस करेंगे माइंड भी थोड़ा सा एजिटेटेड होता है इफ यू आर लाइक अवेयर especially in Amavasya and Purnima, mind is also slightly more aggressive, more agitated. So that's why you start controlling from the 10th, 11th day से हम start करते हैं and it should actually end at Amavasya. हम अभी 3 day ही कर रहे हैं. Let's do a 3 day thing where we control our diet in such a way so that हमारा जो डाइजेशन है जो नॉन स्टॉप काम करते जा रहा है ओके नाउ सपोज हमारे घर में गाड़ी है हम गाड़ी को अगर दिन में 13-14 घंटा चलाते हैं उसको रेस्ट नहीं देते तो हमें उसको भेजना पड़ता है सर्विस सेंटर में राइट एवरी फ्यू मंथ्स या एवरी फ्यू वीक्स उसको एक सर्विस सेंटर जाना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन गाड़ियां कितनी चलती है जैसे अगर टूरिस्ट गाड़ी चलती है तो उनको बहुत फ्रीक्वेंटली जाना पड़ता है सर्विस स्टेशन में एंड अगर आप गाड़ी को कम चला रहे हैं तो पर हम बार बार टूरिस्ट गाड़ी जैसे बहुत चलती है ना वी हैव बीन लाइक कंडीशन टू ईट very often
दिन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 6 बार, 7 बार, 8 बार हम खाने की आदत डाल दी है। तो व्हाट अवर ऋषि मुनि सेड कि एटलीस्ट 11th डे ऑफ द लूनर साइकिल यू डू सम रिस्ट्रेंट, इट्स लाइक मेंटेनेंस। ओके, तो अगर आपको गाड़ी को मेंटेनेंस में भेजना है, तो जो इंजीनियर है वो चलती गाड़ी को सर्विसिंग करता है कि इंजन टर्न ऑफ करके सर्विसिंग करता है? हाउ डज ही सर्विस दैट कार? एनीबडी कैन अनम्यूट एंड स्पीक, आई नीड वन पर्सन टू टॉक। Turn off the car. टर्न ऑफ, या तो सोमजी इज सेलिंग, या ही टर्न्स ऑफ द कार, इंजन बंद करेगा, उसको ठंडा होने का वेट करेगा, गर्म इंजन को भी टच नहीं करेगा वो 1-2 घंटा गाड़ी को रखेगा गैराज में, एंड देन ही स्टार्ट्स वर्किंग ऑन इट विद द इंजन ऑफ। ओके, सो दिस इज द, समझ आइए 2 दिन आपके बॉडी के सर्विसिंग का ही है। जो 11th डे, जो महीने में 2 बार एकादशी आती है, दिस इज लाइक योर बॉडी इज गेटिंग सर्विस्ड। तो खाने, जो हम खाना खाते हैं ना, उसके 4 पार्ट्स होते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं अपनी बुक में। वन इज इंजेशन, इंजेशन मतलब हम खा रहे हैं उसको। ओके, सेकेंड इज डाइजेशन, जो हमारे स्टमक में होता है। थर्ड इज असिमिलेशन, असिमिलेशन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टिन में। एंड फोर्थ इज एक्सक्रीशन, जो होता है हमारे लार्ज इंटेस्टिन और हमारे रेक्टम से। ओके, सो देर आर 4 पार्ट्स टू आवर डाइजेस्टिव प्रोसेस जो होता है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वी आर गिविंग मोर इंपॉर्टेंस ओनली टू व्हाट वी ईट, मतलब हम ज्यादा फोकस करते हैं इंजेशन में, बिकॉज बाकी 3 तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे चीज में एक ही कंट्रोल है कि हम माउथ के अंदर क्या डाल रहे हैं, दैट इज इन अवर कंट्रोल। एंड बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ फूड मार्केटिंग कंपनीज, इतना स्ट्रांग उनका लॉबी है, दैट वी हैव बीन कंडीशन टू ईट एवरी 2-3 आवर्स। हमें भूख लगती है, एंड इट इज ट्रू, वी फील हंग्री, बिकॉज बचपन से हम, अगर माँ बाप बोलते खा खा खा, उठते ही सुबह 6 बजे तू बादाम खा, दूध पी, बिस्किट खा, फिर 9 बजे नाश्ता खा, फिर 11 बजे कुछ खा, 1 बजे खा, 3 बजे खा, 5 बजे खा, रात को 11 बजे तक हमारे खाने का साइकिल ऑन रहता है। बिकॉज हमें बोला गया है कि खाना जरूरी है, खाना जरूरी, खाओ खाओ खाओ, खाओ नहीं तो ग्रो कैसे करोगे। हमारा हंगर पैटर्न पूरा चेंज हो गया। And why we are suffering so much, see why there are so many cases of like juvenile diabetes, juvenile cancer, बच्चों को arthritis हो रहा है, क्यों हो रहा है? It is only because we are focusing only on one aspect of digestive process, the ingestion. Are you with me? Are you with me, everyone? Ingestion, we are not giving adequate time to digestion, we are not giving adequate time to assimilation, not giving adequate time to excretion। तो हमें क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, एसिडिटी होती है, ओवरवेट हो जाते हैं, वी लुक फैट, हमारा इधर फैट आ जाता है, गाल में फैट आ जाता है, बॉडी में, लोअर एब्डोमेन में, हिप एरिया में, थाइज में इतना मोटापा आ जाता है। नाउ वी नो दैट ओबेसिटी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द डिजीजेस। तो येस्टरडे मेरे पास शाम को मेरी एक रिलेटिव है, उनका फोन आया मेरे पास, दैट मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आ गया, मुझे लंबर स्पॉन्डिलोसिस आ गया, आई एम हैविंग थायराइड फॉर 20 इयर्स, आई एम हैविंग दिस, आई एम हैविंग दैट। वेल, व्हाट्स योर वेट, हाइट एंड वेट? तो शी टोल्ड आई एम 5 फीट एंड आई एम 80 केजीज। इट्स सुपर हाई, 80 किलो के आप है तो सुपर हाई, इट्स वेरी वेरी। फर्स्ट थिंग यू नीड टू ब्रिंग डाउन योर वेट। बोले वो मेरे से नहीं होता है, खाने में कंट्रोल नहीं। मतलब व्हाट कैन आई डू देन? आई नो ओनली वन वे टू ट्रीट पीपल इज लाइक, फर्स्ट यू हैव टू ब्रिंग डाउन योर वेट बाय हुक और क्रुक। मेरे से नहीं होता है, गो फॉर अ प्रोफेशनल कंसल्टेशन, बट यू हैव टू ब्रिंग डाउन योर वेट। तो यहाँ पर जो भी ओवर वेट है, उनके लिए बहुत अच्छा है आज का दिन। एक तो आप क्या करते हैं कि you're कंट्रोलिंग योर इंजेशन, हम बाकी 3 जो मेन प्रोसेसेस हैं उसको एक मौका दे रहे हैं। ज्यादा एक्सक्रीशन होगा, एसिमिलेशन बेटर होगा, डाइजेशन बेटर होगा, बिकॉज हम जो भी खाना खाते हैं ना, देर इज लेफ्ट ओवर फूड इन अवर सिस्टम। लेफ्ट ओवर फूड होता ही है थोड़ा, एंड वो जब नहीं निकलता है, वो ही सड़ते रहता है हमारे पेट में। जैसे एक फ्रिज में, आप फ्रिज का एग्जांपल लीजिए। ओके, सपोज फ्रिज में आपने कुछ फल रख दिए, कुछ पका हुआ खाना रख दिया, कुछ रख दिया, एंड वो अगर कुछ दिन तक फ्रिज में रहा तो क्या होगा, खाना वो सड़ने लगेगा, राइट? बदबू आने लगेगी उससे। क्या वो खाना खाएंगे आप वापस? ऑब्वियसली नहीं खाएंगे, आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे कि बासी खाना हो गया है। तो वैसे ही खाना हमारे सिस्टम में रहता है, इट्स नेवर लाइक कंप्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम अवर सिस्टम। उसके लिए मंथ में 2 बार आइडियली वी शुड डू वाटर फास्ट। अगर वाटर फास्ट आपसे नहीं हो सकता है, एटलीस्ट डू अ फ्रूट डाइट। वो भी नहीं हो सकता है, हैव वन कुक्ड मील विच इज विदाउट ग्रेन। Okay, so this is the scientific logic behind why we should do some kind of fasting. क्या क्या benefits है इसके? It's a long list. I'll just read out from my phone because I don't want to miss out any benefits. You can write down in your book. I'll just take 3 more minutes and then we start with the exercise. So arthritis है, your inflammation comes down. तो जिनको arthritis है, जिनको cancer है, जिनको disease is related to inflammation,
तो वो सब बीमारियां जिनको है, वो बीमारी इन्फ्लेमेशन आपका नेचुरली डाउन आ जाएगा। जो CRP एंड ESR है, इफ यू डू इंटरमीडिएंट फास्टिंग डेली और इफ यू डू लाइक वाटर फास्टिंग, योर इन्फ्लेमेशन विल कम डाउन। वेट ऑब्वियसली आपका यू स्टार्ट वेट धीरे धीरे आपका कम होने लगेगा। यू स्टार्ट यूजिंग कीटोन्स। जो हमारा बॉडी है ये दो फ्यूल पे चलता है, वन इज ग्लूकोज, वन इज कीटोन्स। ओके, सो प्रॉब्लम इज दैट कीटोन्स कब यूज करेंगे हम, जब हम कुछ नहीं खाएंगे। So right now I'm following a professor from Harvard also. He is Professor David Sinclair. He is a doctor, medical doctor, and he is a big proponent of intermittent fasting. That daily you should do some kind of fasting daily, not intermittent fasting मतलब जो हम करते हैं 14 से 18 घंटे का। बहुत सारे फायदे हैं उसके। One of the benefits is it's anti-aging. So no doubt me and my wife both look very young. We don't look our age. हम 40 के हो गए दोनों, लगते नहीं 40 के। Why? Because we are following this pattern of eating for a long time. A very healthy diet along with intermittent fasting. It is anti-aging. So scientifically what he says, you'll be alarmed by it, that intermittent fasting, अगर आप डेली आप 16 से 18 घंटा करते हैं, see don't jump to new students, especially like Priya, like Nishita, जो भी नए ज्वाइन किए ना, don't jump to 16 to 18 hours directly. Start with 12, gradually 13, 14, 15, 16, धीरे धीरे हमें बढ़ना है. But if you do are able to like follow this pattern of eating along with a whole food plant-based diet. See, this is important. Intermittent fasting करके अगर हम कचरा खाएंगे ना सब 8 घंटे में, कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप तेल, घी, बटर, मसाला और नॉन वेज फ्राइड वगैरह खाएंगे ना, कुछ नहीं। Intermittent fasting along with a whole food plant-based diet, it will can increase your lifespan by 14 years. It is scientifically proven. वो रिसर्च कर रहे हैं उस पर। 14 साल आपकी जिंदगी बढ़ सकती है विथ फास्टिंग, विथ इंटरमीडिएंट फास्टिंग। तो ऑल द मोर इम्पोर्टेंट वी गिव टू रेस्ट टू डाइजेशन एटलीस्ट ट्वाइस अ मंथ। डेली करे तो बहुत अच्छा है, इंटरमीडिएंट फास्टिंग डेली करे तो नथिंग लाइक इट। सो रीटा भाभी, जस्ट थोड़ा सा विल पावर मजबूत बनाना में, और कुछ नहीं है। बिकॉज बॉडी को 2 से 3 हफ्ता लगेगा एडजस्ट होने में। 2-3 हफ्ते आपको थोड़ा चक्कर आएगा, थोड़े हंगर पैंग्स होंगे। ट्राई एंड फिनिश योर डिनर बाय 6-7, नेक्स्ट मील हैव बाय 10-11-12, डन, हो गया काइंड ऑफ। इतना तो कर सकते हैं हम, इतना हम कर सकते हैं अपने हेल्थ के लिए। एटलीस्ट जो सफर कर रहे हैं, जिनको बहुत बीमारियां हैं, वो तो डेफिनेटली करिए। जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल है, जिसको डायबिटीज है, कैंसर है, आर्थराइटिस है, रोमेटोड आर्थराइटिस है, वो तो एटलीस्ट करिए आप। जो ओवरवेट है, ओबेसिटी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द डिजीजेस। ओबेसिटी मतलब कि इट्स लाइक यू हैव टू ब्रिंग डाउन योर वेट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। मतलब इट इज, ओवरवेट होना एक पाप है हमारे शरीर के लिए। ओके, और क्या बेनिफिट है? क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत अच्छी आती है। यू कैन लुक एट माई क्रिएटिविटी, लाइक हाउ effortlessly I do these classes now. I was not like this before. A lot of clarity of mind comes. Depression जिनको है, depression heal करने में help करता है। It helps with people with depression, anxiety, stress disorder. काफी मददगार है इसमें। So जब इतने सारे benefit है ना, तो we should give it a try. Okay, तो जो नई join की है, please don't do extreme also. Here are people who have been fasting for like years and years. So don't compare yourself with them कि वो 18 घंटा कर रहा है। कोई competition नहीं चल रहा है यहाँ पर कि कौन कितने घंटे फास्टिंग कर रहा है। 12 to 13 hours इज अ गुड वे। रात को 7-8 बजे आप खाना खा लीजिए, नेक्स्ट डे सुबह ब्रेकफास्ट आप 9 बजे के बाद दीजिए। तो 13 hours इज अ गुड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। एंड देन ग्रेजुअली आप डिनर पहले करते जाइए, ब्रेकफास्ट को थोड़ा लेट करते जाइए। ब्रेकफास्ट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। और जो बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ फोटोज डालते हैं, बहुत सारे नट्स, सीड्स, स्प्राउट्स एक साथ नहीं खाना चाहिए इतना। तो दिस जो कॉन्सेप्ट है ना, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स हर मील में होने चाहिए, इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट। दिन का शुरुआत डोंट स्टार्ट विथ नट्स, एटलीस्ट डोंट स्टार्ट योर डे विथ नट्स, स्पेशली ऑन फास्टिंग डेज, ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग डेज। नट्स क्या होता है, बहुत हार्ड होता है डाइजेस्ट करने के लिए। एंड सुबह भी हमारा डाइजेशन वीक होता है, मॉर्निंग टाइम में हमारा डाइजेशन काफी वीक होता है हमारा। जब तक सूरज हमारे सर के ऊपर नहीं आता है ना, डाइजेशन वीक ही रहेगा हमारा। तो सुबह मिल्क, नट्स, ग्रेन्स, इन सब से दिन का शुरुआत मत करिए। बेस्ट इज फ्रूट और स्मूदी टू स्टार्ट योर डे, नथिंग मोर बेटर। Don't worry about the fructose, the sugars in fruits. फाइबर बहुत जाता है, it neutralizes that fructose and जो शुगर होते हैं इसको न्यूट्रलाइज कर देता है वो। बेस्ट इज स्टार्ट योर डे विद अ फ्रूट, हैव अ कुक्ड मील एट लंच, डिनर में अगेन सूप एंड सैलेड, यू आर डन फॉर द डे। सबसे सिंपल पैटर्न ऑफ ईटिंग, देयर कैन नॉट बी एनीथिंग मोर सिंपलर। एंड ईट वैरायटी, ईट अ रेनबो डाइट। बहुत सारी वेराइटीज जितना खाएंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है। तो बहुत खिचड़ी बनती है, बहुत लोग बोलेंगे ये करो, वो तो बोलेंगे वो खाओ, ऐसा खाओ, वैसा खाओ। ऑल
मार्केटिंग फंडा सब बिजनेस चलाने के लिए सब बहुत कुछ बोलेंगे. दिस पैटर्न ऑफ ईटिंग इज ट्राइड एंड टेस्टेड. नो वन कैन क्वेश्चन दिस पैटर्न ऑफ ईटिंग की ये है. कोई बोलेगा प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन. आप मजदूर नहीं है, आपको उतना प्रोटीन चाहिए, दैट यू नीड दैट काइंड ऑफ प्रोटीन. दिस इज अगेन अ मार्केटिंग. कहाँ से एलिफेंट को प्रोटीन मिलता है, कहाँ से गोरिल्ला को प्रोटीन मिलता है? दे आर सो स्ट्रॉन्ग. हाँ, कहाँ से उनको प्रोटीन मिलता है? ऐसी नेचर ने सब कुछ बनाया है. आज प्लांट का स्ट्रक्चर भी तो प्रोटीन से आया है. जो सीड है उसी से आया है. हाँ, प्रोटीन हर चीज में होता है. एवरीथिंग इन द नेचर हैज प्रोटीन. एंड कोई बोलता है ना कंप्लीट प्रोटीन, सबने सुना होगा कि नॉन वेजिटेरियन इज कंप्लीट प्रोटीन. अमाइनो एसिड्स उसमें सारे होते हैं. तो आई एम नॉट सेइंग कि आप एक चीज को कंपेयर करिए. आप रोटी सब्जी दाल चावल अगर खा रहे हैं, अगर तीन चार चीज मिला के खाते हैं तो उसमें प्रोटीन आ जाता है. सारे 9 अमीनो एसिड्स. इनफैक्ट यू गेट 17 अमीनो एसिड्स फ्रॉम प्लांट बेस्ड सोर्सेज. नॉन वेजिटेरियन से तो हमें 9 अमीनो एसिड्स मिलते हैं. प्लांट बेस्ड सोर्सेज अगर आप वैरायटी खाते हैं पूरे दिन, क्या क्या खाना है हमें ज्यादा? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स. हम खाली इतना भी खाएंगे ना, यू गेट ऑल द अमीनो एसिड्स दैट आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड. पूरे दुनिया में जितने अमीनो एसिड्स होते हैं ना, सारे हमें मिलेंगे. बट प्रॉब्लम क्या है? कुछ कुछ न्यूट्रिशनिस्ट्स या कुछ कुछ संस्थाएं क्या करती है, उसको आइसोलेट कर देगी कि ग्रीन से तो हमें चार ही. ग्रीन से तो चार मिल रहे हैं, पर लेंटिल से बाकी चार मिल रहे हैं आपको, बीन से बाकी पांच मिल रहे हैं आपको. एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं जस्ट. ओके, सो आई एम नॉट टेलिंग यू रिलाई ओनली ऑन फ्रूट डाइट और ओनली ऑन. डोंट गो ऑन एक्सट्रीम्स इनिशियली. हैव अ कंप्लीट थिंग. हम थोड़ा कुक्ड भी खा रहे हैं, थोड़ा रॉ भी खा रहे हैं, थोड़ा फ्रूट्स भी ले रहे हैं, थोड़ा सूप्स भी ले रहे हैं, सैलेड भी ले रहे हैं. सब कुछ मिल जाएगा आपको. ओके, यू विल गेट एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी. लुक एट विशाल, लुक एट रीटा भाभी, क्या कैसे उनकी हीलिंग हो रही है. लुक एट मी, अंशु. सबकी थायराइड की दवाइयां छूट गई है. जो बोलते हैं ना थायराइड लाइफ लॉन्ग है, डायबिटीज लाइफ लॉन्ग है, दिस आर नॉट लाइफ लॉन्ग कंडीशंस. These are just lifestyle conditions which can be like corrected with the right lifestyle. And that's why today is very important. जब हमारा digestion आज naturally weak होता है on the day of एकादशी, our digestion is naturally weak. So try like limiting your grain intake. मैं भी बोलता हूँ पूरा वाटर डाइट करिए. पूरा कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट. रीटा भाभी बंद मत करिए. आप लोग जो कर रहे थे ना वाटर फास्टिंग, इट कैन डू मिरेकल्स. मेरे एक स्टूडेंट थे गुजरात से, मेरे एजेंट भी है. सिवियर केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिवियर केस. पसवाड़ा तक नहीं ले सकता था, चलना तो दूर की बात. पसवाड़ा मतलब ही कुड नॉट टर्न ऑन हिज बेड. इतना खराब एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, मेरी वाली बीमारी. और मेरे साथ कुछ दिन एक्सरसाइज किया, थोड़ा बेटर हो गया. देन ही वेंट टू आयुर्वेदिक डॉक्टर, जिसको मेरी मदर अभी दिखा रही है ऊना में. ही पुट हिम ऑन 11 days वाटर फास्ट इनिशियली. 11 दिन वाटर फास्टिंग किया. एंड टुडे ही इज मच मोर फिटर देन मी. मेरे से ज्यादा कसरत कर पा रहा है आज के दिन. जो मेडिकल साइंस बोल दिया था कुछ नहीं होगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, ही इज मच मोर फिटर. ये होता है वाटर फास्टिंग से. सो मैं बोल रहा हूँ वीक महीने में 2 ही बार करिए. जो एक्सपीरियंस, दिस इज फॉर एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स लाइक रीटा भाभी, लाइक अंशु, जो काफी सालों से करते आ रहे हैं. एटलीस्ट हम 17 to 18 आवर्स तो कर ही सकते हैं. इन बाद में आप बोले फ्रूट स्मूदी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट वोंट स्पाइक योर इंसुलिन दैट मच. तो हम 18 आवर्स का वाटर फास्ट कर लिए, उसके बाद कुछ फ्रूट्स खा लिए, रीटा भाभी उतना खराबी नहीं करेगा वो. ओके, यू कैन डू दैट. बट एटलीस्ट एक्सपीरियंस स्टूडेंट शुड एम फॉर एटलीस्ट 16 to 18 आवर्स ऑफ वाटर ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग ऑन एकादशी डे. उतना तो हमें करना चाहिए एटलीस्ट. एंड न्यू वाले 12-13 घंटा करिए, बाकी दिन पूरा फल खाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड जिसे कुछ भी नहीं होता है, हैव वन कुक्ड मील, कोई प्रॉब्लम नहीं. दैट विल ऑल्सो गिव यू बेनिफिट्स ऑफ एकादशी. ओके, so I will stop the recording now and we start with exercises.